This session brings together thought leaders and change makers to ignite a dialogue on one of the most urgent needs of our time, awakening a collective environmental consciousness. Together, they will explore how awareness can transform into action and how action can pave the way for a sustainable future. Chairing this session is Mr. Satendra Kumar Singh, an IFS officer known for his remarkable service in mitigating natural disasters worldwide. Steering the conversation ahead, we have with us Mr. Ajay Suri, our moderator for the evening. And it is now my privilege to invite on stage our distinguished panelists for the session. Joining us are Mr. Rohit Mehra, a 2004 batch IRS officer fondly known as the Green Man of India for his pioneering environmental initiatives. Mr. Ramveer Tanwar, a water conservationist and a passionate advocate for community-driven solutions. He is also called the Pond Man of India. Mr. Parveen Kaswan, a 2016 batch IFS officer posted as the field director of Jaldapara Wildlife Sanctuary and a renowned voice on wildlife and ecological conservation. And Dr. Jyoti Kumar from GAIL, an organization committed to sustainable energy and environmental responsibility. Ladies and gentlemen, please put your hands together and give them a warm round of applause. आदरणीय विद्वत पैनल्स, हमारे IFS एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स, विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे सीनियर एवं जूनियर और मेरे कुलीग IFS ऑफिसर्स, सभागार में उपस्थित सभी गणमान्यजन, सभी को मेरा सादर नमस्कार। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक IFS एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल committee to give me this opportunity on a topic that is awakening collective environment consciousness. The topic which is very near to my heart, मेरे दिल के बहुत करीब ये टॉपिक रहा और इस पर मैं पिछले लगभग 30 वर्ष से, for the last 30 years, I have been working in the field of climate change, disaster management, and environmental conservation. I was talking that about I have been working in the field of climate and disaster resilience for the last almost 30 years. Besides working as director of National Institute of Disaster Management, director of SARC Center, I got an opportunity to work in with the Food and Agriculture Organization, Asian Development Bank, World Bank, and UNDP in more than 12 countries I worked with. During this, my experience and learning in the field of climate and disaster resilience, three important things which I learned, and that I'll be discussing in my presentation, a small presentation, only 2-3 slides. The first learning of my experience is climate change, disaster, and environmental degradation is very inextricably linked. We can't see them in isolation. तो यदि हमें पर्यावरण पे काम करना है, एनवायरनमेंट पे काम करना है, तो वी हैव टू टेक एन हॉलिस्टिक अप्रोच। इन तीनों को साथ लेके चलना है। दैट इज द फर्स्ट लर्निंग। सेकंड, माय लर्निंग इज environmental development. Recently, you must have seen in that news also, and particularly so many disasters were there in Uttarakhand, Himachal Pradesh, nowadays in Punjab also. So it's not, we call them natural disasters, but basically they are not natural disasters. They are human induced. And I think unplanned development is one of the major cause for such type of extreme weather events which are taking place and devastating like anything in our country. So this is my second learning. I worked in Uttarakhand also, and I authored a book in 2003.
आज से 22 साल पहले किताब लिखी थी उत्तराखंड के ऊपर, बिकॉज माई PhD इज ऑल्सो फ्रॉम दैट एरिया. I did my PhD in Himalayan geotectonics and environment, geo-environment. So in the book on the left-hand side, that is disaster management in hills. And then after, in 2013, there was a major disaster that we call the Himalayan tsunami. Himalayan tsunami के नाम से हम उसको जानते हैं. तो कितना विनाशकारी वो रहा होगा. तो इन दोनों हिमालय क्षेत्र के अंदर मैंने जो कार्य किया उसके ऊपर मेरा जो अनुभव रहा कि डेवलपमेंट जो है, जो कि अनप्लान डेवलपमेंट, दैट इज द मेन रीजन. व्हाट आई एस्टिमेटेड, पर्टिकुलरली वी आर सेइंग दैट एवरीबडी नीड डेवलपमेंट. इट्स नॉट लाइक दैट. डेवलपमेंट मस्ट बी देयर, डेवलपमेंट शुड बी देयर फॉर द हिली पीपल ऑल्सो, दे ऑल्सो नीड इट, बट इट शुड बी सस्टेनेबल. What we estimated when we construct road in Himalayan region, because Himalaya is very sensitive, ecological and environmentally, it is very sensitive. 1 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन करने में हिमालय में मैडम अराउंड 60,000 क्यूबिक फीट ऑफ डेब्रीज इज क्रिएटेड. दीपक जी, 60,000 क्यूबिक फीट डेब्रीज जो है वो मलबा इकट्ठा होता है और वो कहाँ जो पे जाता है, वो सीधा नदी के अंदर जाता है. The carrying capacity of the river is thus reduced, and it creates so much environmental degradation. That is one of the major cause of disasters in Himalayan regions. Of course, we should construct road. Development is the right of every people, but there are many technologies, many new technologies are there, innovations are there, forestry and this vegetative engineering we call that. So technology are there, but they are a bit expensive. In Uttarakhand disaster 2013, I led a team. I was director of National Institute of that time, and we carried out extensive research in that part, my team. And we found that these hydropower plants, which are more than 70 in this Himalayan region, so they also one of the major factor of devastation and environmental degradation. So in the third book, that is on the right-hand side, which I published sometime in 2005, I suggested a lot of measures that how sustainable development can be done, and this can reduce the risk of disasters and extreme weather events. That is my second learning. And third is, that is very important learning is role of foresters, because so many senior forest officers are there. हमारे गुरु जी HS सिंह साहब भी हैं सर. तो forestry can play a very important role in disaster risk reduction and climate change mitigation. This article I published. I usually write for Pioneer, and in 1 month, 2-3 articles I got published related to environment, climate change, disaster risk reductions, and so many other topics. In this article, I tried to focus that how forestry can be used for climate and disaster risk resilience. So it is the duty of we forest officers, because nowadays the opportunities, we have to think, so many senior officers are there, so and IFS officers are there, so we have to think out of box. Plantation karna theek hai, wildlife conservation is also correct and up to, but side by side we think that what are the new needs, what are the requirement nowadays, what are the burning issues. Climate change, disaster risk reductions, carbon sequestration, carbon credit. These are some of the issues, and we foresters can certainly play a very strategic and important role here. तो हम लोगों को ज़रूरत है कि थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचें, इन चीज़ों पे भी कार्य करने की आवश्यकता है, इन चीज़ों पे भी हम लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि बर्निंग इशू हैं. ओवरऑल जो डिजास्टर्स हिंदुस्तान के अंदर होते हैं उसमें लगभग 3% GDP हमारा नुकसान होता है. आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं. हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा. लेकिन मेरा सोचना है कि विकसित भारत नहीं, हम लोगों को सुविकसित भारत बनाने की ज़रूरत है.
लास्ट स्लाइड है। हम लोगों का जो ध्यान होना चाहिए विकसित भारत पर नहीं बल्कि सुविकसित भारत पर होना चाहिए। कैसा भारत होना चाहिए? जिसके 5 तत्व हैं। सुदृढ़ भारत हो, रेजिलिएंट इंडिया। सुशिक्षित भारत हो, दैट इज एजुकेटेड। एंड सुसंस्कृत with our ethical duties, and surakshit and safe from all the threats from the inside and from outside. तो ऐसे भारत की परिकल्पना हम लोग सोच रहे हैं कि 2047 तक ऐसा एक सुविकसित भारत हम लोग तैयार करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम फॉरेस्टर्स की बेहतर काफ़ी ड्यूटी है, हम लोगों का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वी शुड कम एट द फ्रंट लाइन। And that can be possible only if we take care of the nature and we take our developmental activities in a sustainable manner, taking all these nature-based development. So thank you with this. Thank you and Jai Hind. मेरा सभी पैनल के जितने हमारे डिस्कशंस मेंबर्स हैं सभी को मैं स्वागत करता हूं और मैं इन सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ पर भी अपना जो पैनल डिस्कशंस करेंगे, जो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, उसमें इन चीज़ों पर भी थोड़ा तवज्जो देंगे। तो आई थिंक बिकॉज दे आर द बर्निंग इशूज, दे आर द नीड ऑफ द आवर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट एंड रिगार्ड्स। Uttarakhand disaster. I personally feel that it's a disaster still continuing. It's in the making now, which everybody, all of us know, and you don't have to be told about it. This is a very interesting panel. And what I really found quite interesting was the title, Awakening Collective Environment Consciousness. Now, awakening presupposes the need for awakening of people. It assumes that half of us are asleep. And when we say collective, so it has to be a collective responsibility. It cannot be a one-man show. In our scriptures, in a lot of other places, it's written that, Earth itself is a living being. We have discovered now that पेड़ों की भी जिंदगी होती है, जान होती है उनमें, but Earth itself is a living being. And, I'm always reminded of this concept of synchronicity, which says that in this universe, everything, even our thoughts, material, everything is connected to each other and they affect each other. And one example which is often given, is people like Carl Sagan have, written about it. It says that a butterfly flapping its wings in Brazil can cause an earthquake in China. Think about it. So when we talk of environment, we forget that we are part of the environment. Environment is not the part of us. Of course, many of us now think that for many of us the environment is the WhatsApp, the YouTube, the social media, and a lot of us are trapped into it. So I'll not take much of more time now, and I'll throw the ball to the panelist. My first question would be to Mr. Ranveer Tanwar, often known as Pond Man of India. Sir, I had the great opportunity of making a few years ago documentary film on Chewang Naufal, the Glacier Man of India. I spent like 1 week in Leh. Now, water is a huge thing, and if you can tell us something about how, our environment is being affected by lack of water, more of water, people's awareness about water, and what you have been, doing. First of all, thank you so much for my intro and for this beautiful question. Although पिछले 2 से 3 महीने में हमने सिर्फ अगर कोई घर, कोई फैमिली, कोई इंडिविजुअल शायद ऐसा नहीं बचा हो जिसने पानी की बात भारत में ना की हो, और वो पॉजिटिव वे में तो आई थिंक नहीं की होगी किसी ने भी, है ना। तो पानी तो हमारे दिलो दिमाग में इस तरह से घुस गया है। और मैं जो काम करता हूँ वो सर
तालाबों के बारे में है, वी कॉल इट पॉन्ड, पोखर, जोहड़, ताल, तलैया, चाल, खाल इन उत्तराखंड. There are more than 200 names in India for the same water body, for traditional water bodies, traditional water harvesting methods. So, but और हम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो जिसकी चाइल्डहुड मेमोरीज पॉन्ड्स के साथ ना जुड़ी हुई हो, अगर वो गांव से बिलोंग करते हैं. वेरी तो, इंटरेस्टिंग है ना. और चाहे उनमें नहाना, चाहे उनके किनारे पे भैंस लेके जाना, खुद नहाना, लेकिन वो चाइल्ड मेमोरीज जो एक तरह से अच्छी मेमोरीज थी, वो पिछले 20 से 30 सालों में वो खराब मेमोरीज में भी चेंज हुई है हमारी. अब आप जहाँ पे पेरी अर्बन एरिया है, या जो ऐसे रूरल एरिया स्पेशली जो शहर के आसपास होते हैं या हुआ, उसमें 60 to 70% पॉन्ड्स जो मेरे देखे हुए हैं, या तो वो लैंडफिल साइट जैसे दिखते हैं, कचरे घर जैसे दिखते हैं, या फिर उन पे लोगों ने कब्जा कर लिया है. और आपको बहुत सारे शहर ऐसे दिख जाएंगे जहाँ पे 50% पॉन्ड से ज़्यादा पॉन्ड गायब हो चुके हैं, है ना. आप नोएडा ले सकते हैं, गुड़गांव ले सकते हैं, बेंगलोर ले सकते हैं. और यही कारण है, आप थोड़ी सी बारिश होने दीजिए, थोड़ी सी बारिश में वो पूरा शहर तालाब जैसा दिखने लगता है ना. तालाब खत्म किए थे, लेकिन वो नौबत यहाँ तक आ गई है तो शहर ही तालाब बन जाता है वो. और आप इन शहरों में आप कभी ये जो सोसाइटीज बनी हुई होती हैं हमारी, इनमें इनके नाम पढ़ के देखिएगा, है ना. ज़्यादातर का नाम ऐसा होता है, ग्रीनवुड सोसाइटी, लेक व्यू सोसाइटी, पॉन्ड व्यू सोसाइटी, है ना. अगर आप कोई कह रहा है फॉरेस्ट व्यू सोसाइटी, तो समझ जाइएगा कि यहाँ से फॉरेस्ट को काट के सोसाइटी बनाई गई है ना. अगर कोई लेक व्यू सोसाइटी कह रहा है, तो समझ जाओ कि यहाँ पे एक लेक हुआ करती थी. That is the real meanings of Mr. Tanwar, I'll just interrupt you for a second and you can continue. आपने जो बात करी है, मुझसे रहा नहीं गया ये. देहरादून में जो उत्तराखंड की राजधानी है, वहां पे आज से 3-4 दशक पहले 2 नदियां थी साफ सुथरी, एक थी बिंदाल और एक थी रिप्सना. आज की तारीख में वो दोनों के दोनों नाले बन चुके हैं और उनके दोनों तरफ स्लम्स आ चुके हैं. आप मतलब ये एक ऐसी भयानक पिक्चर है. प्लीज कंटिन्यू सर. तो जहाँ तक मेरी काम है, मेरा प्रयास है कि आज से 10, 20, 30, 50 साल पहले जो गाँवों के तालाब थे, खत्म हो चुके हैं, अब लैंडफिल साइट जैसे दिखते हैं, उनको वापस से क्यों ना रेस्टोर किया जाए, वापस से उनको रिजुवनेट किया जाए, वापस से तालाब की शक्ल में लाया जाए. सो आई स्टार्टेड इट एज एन वॉलंटियर ओनली व्हेन आई वाज इन कॉलेज डेज, but right now we are working in 9 states, and this name, the Pond Man, was given by Honorable Prime Minister only in Mann Ki Baat. And we have been partnered with more than 100 MNC partners. We have partnered with almost many IIT, IIMs, all these organizations in India, and we have restored more than 100 ponds. Although we have lots of challenges in here, but we have a good team right now. But these ponds can resolve your water logging issues, urban floods issues, heat waves issues, anything. जब जितनी भी समस्याएं हैं, मेरी नज़र में सबका एक ही समाधान है, तालाब. इसलिए मैं तालाबों के लिए काम करता हूँ. Very, very relevant observations. Now I would like to come to Mr. Parveen Kaswan, but before that I would एक छोटा सा confession है कि भाई मैं जब भी देखता हूँ कि इनके वीडियो सबसे पहले कहीं कुछ वाइल्ड लाइफ की दुनिया में होता है विद अ प्रॉपर मैसेज, वो कासवान साहब के पास आते हैं. और वो कैसे आते हैं मुझे नहीं पता, बट आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिज वीडियोस. कासवान साहब ये बताइए, आपका मुझे लगता है योर वीडियोस हैव बीन डूइंग अ लॉट इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ. बट व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज लैकिंग? इज अवर पब्लिक एट लार्ज, आप जैसे मैं जब नॉर्मल एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, तो पीपल जनरली इक्वेट एनवायरनमेंट विथ टाइगर्स, राइट? वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का नाम आते ही टाइगर से आता है. सो सिंस यू आर IFS ऑफिसर, लोगों की नब्ज आपको पता है क्या है, आप कुछ एक शिफ्ट देख रहे हैं लोगों की थिंकिंग के अंदर एनवायरनमेंट को लेके? इस समय मौजूदा हालात क्या हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक इज एक्चुअली रिक्वायर्ड ऑन द फ्रंट ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन?
देखिए मुझे मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से आपने किया था कि कलेक्टिव इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस, माने इंडिविजुअल्स तो अच्छे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं और उनके इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन कलेक्टिव अगर करते हैं, अगर अवेयरनेस कलेक्टिव है, मासेस में है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से होगा, ज़्यादा बेटर होगा, फार रीचिंग होगा। और उसको लेकर के जैसे एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर जो मैं करने की कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे किसी तरीके से अच्छा कम्युनिकेटर रहूँ, जो भी मैं चीज़ें देखूँ, जैसे आपने कहा कि टाइगर के बारे में या वाइल्ड लाइफ के वीडियोस के बारे में या फिर वाइल्ड लाइफ के इंफॉर्मेशन के बारे में, देखिए ये एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत रिमोट है और बहुत कम लोगों की इसकी इंफॉर्मेशन लोगों को होती है। और इसीलिए मेरा एक वे रहता है कि मैं लोगों को इन्वॉल्व करूं, कोलैबोरेट करूं, या फिर लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊं मैसेज के साथ में। और मुझे लगता है कि वो एक अच्छा रिजल्ट देता है, लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन जाती है। और एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर हम यही करने की कोशिश करते हैं, लोकल एरिया के अंदर लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट, भले ही वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो। आप देखिए हम लोग कहीं ब्लॉगिंग का प्रोग्राम करें या फिर कहीं प्लास्टिक को चेक करने के छोटे प्रोग्राम करें। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ एक देवेश पांडे एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, वेरी यंग फॉरेस्ट ऑफिसर, और उन्होंने एक बड़ा एक यूनिक सा प्रोग्राम अभी चालू किया, फ्रॉम स्क्रीन्स टू ग्रीन। मतलब स्कूल के बच्चों को वो डेली लेके जाएंगे एक ग्रुप को और रेंजेस के अंदर और घुमाएंगे, और आइडिया ये रहेगा कि आप स्क्रीन्स को मत देखिए, आप ग्रीन्स को देखिए ना। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ये मैसेज जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि उसका एक इफेक्ट कहीं ना कहीं अवेयरनेस में वहां पड़ रहा है। तो इंडिविजुअल जो भी अच्छी लीडरशिप कर रहे हैं, अच्छे प्रोग्राम्स, ऐसे यूनिक प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसका इफेक्ट कहीं पड़ रहा है। जैसे रोहित जी हो या तंवर जी हो, इनके जो भी अच्छे काम होते हैं वो बहुत ही सराहे जाते हैं। उनके कामों के अंदर अगर लोग इन्वॉल्व होते हैं तो बड़े प्राउड फील करते हैं। तो आई थिंक एक कॉन्शियसनेस तो आ रहा है, अवेयरनेस तो आ रहा है। इंटरेस्टिंग। So my next question would be to Mr. Rohit Mehra. Rohit ji, when we talk about, since you are into making a lot of forests, so you must be, involved, making us more inroad into, or getting more involved with people at large, जहाँ आप जंगल उगाते हैं उसके आसपास लोग रहते हैं, कई बार आप लोगों के इंटरेस्ट जो हैं वो कोलाइड भी करते होंगे। So my question to you is, on community engagement, do you see any conflict between conservation needs and requirement of local people? आप जो ये काम कर रहे हैं, अगर ये friction होती है, how does it get resolved? Also, what is the scenario? क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि बहुत, मैं खुद क्योंकि मीडिया से हूँ, मैं देखता रहता हूँ, आए दिन खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे हमारे जो ट्राइब्स हैं, they are feeling hurt, they are feeling aggrieved that their rights are being taken. बहुत से नेशनल पार्क्स के अंदर, मिस्टर अनूप इज हियर, रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर, उत्तराखंड में तो मैं जानता था कुछ साल पहले तक गांव वालों को राइट था कि वो लकड़ी लेके आ सकते थे जंगल से, जितना सर पे उठा सकते हैं, बट आई बिलीव दैट राइट इज मोर और लेस टेकन अवे फ्रॉम देम। सो आप किस तरह की सिचुएशन को देख रहे हैं जमीन पर? नमस्कार, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा। देखिए, मुझे लगता है जब हमने शुरू किया तो पंजाब में शुरू किया, वहाँ अभी फॉरेस्टेशन का कल्चर है ही नहीं। अब पंजाब देखोगे सबसे कम फॉरेस्ट कवर है पंजाब हरियाणा में। तो हमने पहले बच्चों को पकड़ा और उनको ये समझाया कि यदि इस हालात से अब चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा फ्यूचर या किसी का भी फ्यूचर सुरक्षित है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई प्लॉट है, वेकेंट प्लॉट है, कॉरपोरेशन का है या शहर के पेरीफ्री में है, हमने प्लांटेशन की कोशिश की। जो बिल्डर है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसने इस फ्यूचर में सोचा होगा कि नहीं, मैंने इसको कहीं ना कहीं परचेज़ करूँगा। तो बड़ी बार इंटरेस्ट ऐसे आपस में क्रैश किए। बट मुझे लगता है कि जब तक आप उनको प्रॉपरली समझाओ ना, तो एक वो बहुत अच्छी चीज़ रही। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है लुधियाना में, उसकी मदर को लंग्स का शायद कैंसर था। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि लुधियाना में तो आपको रहना ही नहीं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 350-400 बड़ा कॉमन है।
तो उन्होंने कहा या तो आप किसी जंगल में रहो या पहाड़ों में शिफ्ट हो जाओ। तो मेरे संपर्क में आए तो उन्होंने कहा जी हम मनाली जा रहे हैं या उससे ऊपर भी जाएंगे। तो मैंने पूछा आपका कितना ज़्यादा एरिया है आपके पास? उनका फार्म हाउस है, तो 12 एकड़ का फार्म हाउस था और सिर्फ आधा एकड़ कंस्ट्रक्टेड था। तो उन्होंने हमें 10 एकड़ दे दिया, तो हमने उसमें फ्रूट फॉरेस्ट तैयार कर दिया। तो उन्होंने बीच में ही एक छोटा सा हट बना लिया एंड दे स्टेइंग देयर। तो बोथ फिजिकली एंड इमोशनली दे गॉट मच मोर बेटर थिंग्स अदरवाइज। तो मुझे लगता है कि यदि आप एजुकेशन और एग्जीक्यूशन जैसे प्रवीण वगैरह लोग करते हैं, तो एजुकेशन प्लेस मच मोर रोल। एग्जीक्यूशन तब आता है जब आप एकदम से आपको लगता है कि कुछ डेविएंट बिहेवियर है, तब आप करो। और मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा, जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं आजकल बड़ी पॉपुलर टेक्निक है मियावाकी की। हम यूज़ करते हैं वृक्ष आयुर्वेदा, वो एक इंडियन टेक्निक है। 2nd BC में एक ग्रंथ लिखा गया और उससे फॉरेस्ट क्या है, जैसे दे सिंपली से कि वी आर द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेनेट। मान लीजिए साल में 50% लोग हैं वो वेजिटेरियन है, उन्होंने प्लांट खाया। नॉन वेजिटेरियन है, उन्होंने उस एनिमल या क्रिएचर को खाया जो आगे प्लांट को खाता है। तो वी आर द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेनेट और अल्टीमेटली हमारा एक्सक्रीशन भी प्लेनेट का पार्ट बन जाता है। तो पूरे का पूरा सिस्टम जिसमें हवा कैसी है, पानी कैसा होना चाहिए, स्पेस कैसा होना चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या मिट्टी का क्या रूप होना चाहिए, तो वहाँ दिया हुआ है। तो जब हमने शुरू किया तो हमारे 200-225 के आसपास फॉरेस्ट बने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, दे कॉल्ड अस एंड सेड कि व्हाई डोंट यू गिव इट टू अस। तो हमने वो उनको अपनी टेक्निक जो भी जैसे हम बनाते हैं उसको थेराइज करके दिया। नाउ इट्स ए नेशनल एसेट, इट्स ए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन। तो सेकंड चीज़ जो हमने की वो भी बहुत यूनिक है। गिनीज पीपल ने हमें ऑलरेडी इसके लिए अप्रोच किया। वी आल्सो रन वर्ल्ड्स ओनली ट्री एंड प्लांट हॉस्पिटल। अब करना कि आपको बड़ा, मैं जब बच्चों को बताता हूँ या जब मैं उनको लेकर जाता हूँ वहाँ, पहले तो 10-12 सेकेंड तो ये लगता है कि कैन प्लांट्स हैव ए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का हमारा कंसेप्ट, हम जाते हैं और वहाँ इलाज होगा। बट दिस अगेन द वृक्ष आयुर्वेदा टेक्निक, हम प्लांट्स को केयर करते हैं, क्योर करते हैं और हील करते हैं। और बहुत सी जगह पर जैसे अमृतसर और 1-2 जगह पर हमारे पास टी एम्बुलेंस है, नेचर बेस्ड क्योर करते हैं। तो आई विश कि यदि हम लोगों का सपोर्ट मिले तो पूरे इंडिया में हम ऐसा कर सके। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन का कंक्लूजन है, मुझे लगता है देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट। आवर इकोनॉमी हैज़ टू लीड टू इकोलॉजी। देयर कैन नॉट बी इकोलॉजी विदाउट इकोनॉमी, अदरवाइज वी आर गोइंग टू बी ruined. थैंक यू। I would like to, get back to Dr. Jyoti Kumar. Sir, you are with GAIL, corporate communications के head हैं आप. What kind of role do you see of not only public institute but also private, the right meaning private institutes, in bringing more awareness, consciousness about environment? Thank you, sir. Actually, I did not elaborate on this part when I was discussing this because I thought time is very short. But, the very interesting thing is you have to keep on enthusing the youth, the generation next, because it is their world that they are going. We are living in their world. And therefore, we have to keep them totally, completely aware about, what kind of abode they are going to, make, and how they are going to contribute. So right from the early childhood, they should be awakened and should be knowing that the environment consciousness is enough, in a right amount, appropriate amount. They should be aware about it. So the ecosystem that they should develop it. After all, the future is going to be towards net zero only, right? And renewable is going to be making big difference. And the role of less fossil, fuel, which is making the difference, emitting carbon or emitting, even ethane and all. These things should be minimized, and for that we need to convert ourselves. So there is if you look at, if you ask me in terms of question which is a corporate question, this is. So every company, every organization has
develop its own roadmap of going for net zero and all. And there is scope 1, scope 2, scope 3. All these things are in a time bound manner. It is going to be defined. It is already defined even in our company. It is to 2035 we have advanced for scope 1 and scope 2, and scope 4 we have gone for 35%. We are going for 2040, meaning there in scope 3, meaning we are going to change completely our business model. Completely, all the natural gas business is going to be completely changed, which is going to be taking many years and time. We have to also see how the country is going to convert. So it's a constant journey, and therefore the youth is required to be constantly reminded of this and action points. Okay, there's one question, I think many of us would be interested in, and Mr. Kaswan should be the right person to shed some light on. This is on, AI and technology, how it can help in not just for wildlife, but for conservation, environment also. Very recently, a collision between a train and a group of wild elephants in Odisha was averted in the nick of time because some cameras which were installed there, not CCTV, but I think thermal cameras at night. They sent an alert to the railway people, and then they immediately informed the train driver कि लोग सामने हाथी हैं. So this is how. And also in lots of national parks now, whether it's Corbett, Ranthambore, Bandhavgarh, they are very cool. I find that, those cameras are installed within the park, and that is doing a real good work. कि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं जो अपने बिहेव नहीं करते थे ढंग से, उल्टे सीधे काम करते थे, now there is a check and balance on them. So what is going to be the role of AI and technology, not only now but in near future? देखिए, AI इतना फास्ट चेंज हो रहा है, मतलब जितना 6 महीने पहले कुछ था, 2 साल पहले कुछ था, 3 महीने बाद में कुछ होगा. बट डेफिनेटली आई कैन स्पीक अबाउट द करंट सिचुएशन. आपने एग्जांपल EI का दिया, आप थर्मल ड्रोन्स की भी बात कर सकते हो. ये मशीन्स आपस में बात करेगी, ये कैमराज आपस में बात करेंगे, प्रोसेसिंग फास्ट होगी, डिसीजंस AI लेगी. जो आपका ट्रेन वाला आपका जो एक मॉडल है, हाँ, एक रेलवे जो है वो एक OFC केबल के थ्रू भी एक उनका एक सिस्टम है. तो डेफिनेटली AI वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में तो हम लोग लाइव देख रहे हैं. इन एवरी नेशनल पार्क, इन एवरी टाइगर रिजर्व, इन एवरी सेंचुरी, एंड इवन ऑल द डिविजन्स आर नाउ ट्राइंग. क्योंकि luckily so many IITians are coming into Indian Forest Service. So these people are doing a lot in perspective of technology, and yes, technology is keep changing with the AI. So I'm seeing a lot of good examples and a lot of potential also. One last question before we wrap up. This is for Dr. Satyendra. Dr. Since you were involved in a lot of policy making, efforts within the government as a senior IFS officer, do you find that this is the time to change some of our environment laws? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा. वक्त के साथ साथ, क्योंकि अभी सभी चीज़ें बदल रही हैं, एंड विद द चेंज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, विद द चेंज ऑफ आवर एनवायरनमेंट, विद द चेंज ऑफ आवर इकोलॉजी, certainly there is need for make a major change in our environmental laws also, in our Disaster Management Act also, because these acts are very old, so we have to come out with. One thing which I will like to say is about this awakening collective environment consciousness also, if you permit. मेरा इसमें जो अनुभव रहा है, और एक अनुभव मैं साझा करना चाहूँगा. मैं बांग्लादेश में काम कर रहा था, 2009-10 की बात है. वो प्रोजेक्ट था लाइवलीहुड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, जिसका नाम था LACC, लैक.
उसमें हम लोगों को कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना था, बेसिकली कम्युनिटी के साथ में कुछ प्रोग्राम्स ज़मीन पर करने थे, लेकिन लोग इस चीज़ को समझने में बड़ा ही नाकामयाब रहे और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी. Then I had interaction with some people, and they told me that you should use the local songs, local folk songs, local drama, local संगीत, उसके माध्यम से आप लोगों को अवेयर करिए. And we use this technology, we use this technique, and I was surprised to see that so many people came forward. वो जलवायु परिवर्तन की बात, वो पूरी तरह से उन लोगों को हम लोगों ने गीत के माध्यम से, लोकल गीत के माध्यम से. तो मेरा एक इसमें कहने का जो तात्पर्य है कि अवेकनिंग कलेक्टिव एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के लिए यदि हम लोगों, क्योंकि हम लोग पॉलिसी की बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर कैसे ये चीज़, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो धरातल पर लोगों को करना है, तो उनको कैसे इन्वॉल्व करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Dr. Saab, I would have loved to... Just 1 minute. So that is very important. इसके लिए मैं एक बहुत उम्दा लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं. एक देहलवी साहब हमारे शायर होते थे दिल्ली के, उनकी लाइन है, वो बड़ी रेलिवेंट है यहाँ पे. वो कहते हैं कि अपना कहा अगर आप ही समझे तो क्या समझे. यादव साहब, अपना कहा अगर आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे. बहुत बढ़िया. आगे सुनिए, 2 लाइन और हैं इसकी. अपना कहा अगर आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे, कलामे मीर समझे. मीर साहब एक बहुत अच्छे शायर थे. कलामे मीर समझे और कलामे मीर जा समझे, मगर कहीं ऐसा ना हो कि अपना कहा या तो हम समझे या खुदा समझे. तो इट शुड बी इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल. हम बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन ज़मीन पर, धरातल पर, जैसे आपने कासवान साहब ने बताया जोहड़ की बात, मेरा जीवन भी गांव में बीता. हम लोगों ने स्विमिंग सीखी, वो भैंस की पीठ पे बैठ के सीखी, और उसके बाद में मेरे को बताते हुए गर्व होता है कि मैं नेशनल भी वाटर पोलो में खेला. वो भैंस से मैंने सीखा, लेकिन मैं तो हम लोगों की ज़बान में जब तक हम बात नहीं करेंगे उनके गीतों के माध्यम से, तो अवेयरनेस जो है लोगों के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, उनके फोक सॉन्ग से, ओनली देन पीपल कैन लर्न इट. और इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर कल्चर. It should be part of our culture only. Thank you very much. I would have loved to continue with this discussion for 2 more hours, but unfortunately we are short of time. And thank you all very much, sir. बहुत बढ़िया discussion रहा ये.